Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and in this lecture we will cover another component of kingdom fungi, also known as the recyclers, where we will classify them according to the type of reproduction and also other characteristic features. And also we will highlight one of the largest group of known fungi known as the ascomycetes. So by the end of this lecture, you should be able to answer how fungi can be classified on the basis of different types of reproduction that occur in them, what sort of specialized structure are involved in those reproductive mechanisms. We will also come to know what are ascomycetes and describe certain characteristic features. Specifically, we will be highlighting the different type of reproductions that occurs in them through various processes. So on the basis of reproduction, the fungi, they have been classified into 4 groups, and also considering the structural component that are used for reproduction. So we have the ascomycetes first of all, that have both sexual and asexual type of reproduction in them. Then we have the zygomycetes, जिनमें के once again there is presence of sexual and asexual reproduction, but the mechanism is slightly different, जिसको कि हम आगे चल के जो है वो ज़रूर कवर करेंगे. And then we have the deuteromycetes, जिसमें के जो sexual reproduction है that has not yet been discovered or found out in any of the researches, but asexual form of reproduction does exist. And the opposite goes for the basidiomycetes, जिनमें कि sexual reproduction जो है that is going to occur as usual through the mechanism of alternation of generation, but the asexual reproduction phenomena has not been observed in case of the basidiomycetes. So the ascomycetes, they are the largest group of fungi that have been discovered yet. Okay. Why is it so? Because around about 60,000 species that have been found related to the ascomycetes, as they belong to the phylum of the ascomycota. ठीक है. डाइवर्सिटी क्या एग्जिस्ट करती है कि फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके लाइकन्स, मोरल एंड माइक्रोराइजल एसोसिएशन में इनकी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो कि जो है दैट आर मल्टी सेलुलर. उसके अलावा दे कैन बी पैरासिटिक एज वेल एज सेप्रोब्स इन नेचर. देयर हाइफा आर ऑलवेज सेप्टेट, and the organs that they use for the reproduction, they are known as the asci, that are the sac-like structures that consist of ascospores within them. ठीक है. इसके अलावा कुछ जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगाई हैं जैसे मोरल्स हैं, उनके केस में जो एस्का है दैट इज़ इवन कवर्ड बाय अ फ्रूट बॉडी नोन एज द एस्कोकार्प्स. So the sexual reproduction in case of the fungi or the ascomycetes, that initiates with conjugation, जिसमें कि हमने already पढ़ा है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं known as the gametangia, they form an association, जिसके बाद there is fusion of the male and female gametes. और एक दफ़ा जब मेल और फीमेल गैमेट्स के सेल्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, यानी कि पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस दैट इज़ गोइंग टू एसोसिएट. तो इस सेल को इस वक्त हम कहते हैं द डाइकैरियोटिक सेल, क्योंकि एक सी सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. सो डाइकैरियोटिक फेज इन केस ऑफ द एस्कोमाइसीड्स इट इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज, जिसके बाद देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू हाइफा. ठीक है. अब न्यू हाइफा में क्या होगा कि देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एस्काई दैट इज़ फाउंड बाय द कैरियोगेमी. ठीक है. डाइकैरियोटिक फेज़ के बाद एक नया हाइफल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. दैट कंसिस्ट ऑफ दैट डाइकैरियोटिक सेल, और डाइकैरियोटिक सेल में अब प्रोसेस ऑफ कैरियोगेमी होगा, यानी कि जो इस न्यूक्लियस है दैट विल स्टार्ट टू फ्यूज़. ठीक है. न्यू एस्काई उनकी फॉर्मेशन होगी विद इन द एस्कोस्पोर, दैट इज़ अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ठीक है. अब जब कैरियोगेमी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट ओवर हियर. ठीक है.
तो हाइफा के ऊपर ही आपने याद रखना है कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द एस्काई, ठीक है, जिनके के अंदर कैरियोगेमी होनी है, और कैरियोगेमी के बाद जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट दैट हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले जो cells हैं they are present in the एस्काई now, what is going to happen that they will go under cell division, जिसमें कि पहले क्या होगा कि जो zygote है that will transform into 4 haploid nuclei, ठीक है। तो अब जो वो filamentous structure है that is the or the sac like structure that is the एस्काई now consist of the 4 haploid nuclei। अब ये 4 जो हैं ये they go undergo further division, जिसके बाद there is formation of 8 एस्कोस्पोर्स यानी कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई नाउ दे आर प्रेजेंट इन द एस्काई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास एक हाइफा की एक्सटेंशन होती है जो कि न्यूली डेवलप्ड हाइफा है, दैट इज़ सेप्टेट इन केस ऑफ द एस्कोमाइसीड्स, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। इसके साथ ही इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसकी दैट इज़ कवर्ड बाय द एस्कोकार्पल, ठीक है। इसके अंदर एस्काई जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉरी एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये दिस इज़ द एस्काई, इसके सराउंडिंग में वो फ्रूट बॉडी जो है दैट जिसको भी हम कहते हैं एस्कोकार्पल, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ द एस्कोस्पोर्स, ठीक है। ये वो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दैट हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर द कैरियोगेमी, ठीक है। तो ये तकरीबन जो जाइगोट है नाउ दे अंडरगो सेल डिवीजन, ठीक है, यानी कि एक पहले प्रोड्यूस होगा, एक से आगे 4 प्रोड्यूस होंगे, और ये 4 फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे इनटू 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉयड जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी वो अब ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू हैप्लॉइड जनरेशन। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ द alternation of generation that exists in case of these fungi. So now we will try to understand this process with the help of a diagram over here, जिसमें कि सबसे पहले हम मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे, that are known as the ascogonium that are the female gametes and the antheridium the male gametes, ठीक है। तो ये हमने जो है अभी एक फीमेल गैमेट जो है वो ड्रॉ किया है, जिसमें कि हम न्यूक्लियाई को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्सटेंडेड और द मॉडिफाइड हाइफा दैट इज़ यूज्ड एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसी तरह से इस तरह का मेल सेप्टेट हाइफा बेसिकली, तो इसलिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी हाइफा की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो ये जब दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मीट करते हैं, दिस इज़ द फ्यूजन ऑफ द 2 सेल्स, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है, कि दोनों सेल्स ने जो है वो फ्यूज़ किया है। एंड देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई दैट इज़ ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, ठीक है, इस तरह से। तो अब जब ये प्रोसेस हो जाता है तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये होता है कि मल्टीपल जो हाइफा हैं विद देयर डाइकैरियोटिक नेचर दैट आर फॉर्म, ठीक है। ये तो हमने एक अभी सेगमेंट शो किया ना, लेकिन यहाँ पे जो डाइकैरियोटिक फेज़ है वो लेंथी इसलिए होता है कि मल्टीपल हाइफा आर फॉर्म्ड दैट हैव 2 न्यूक्लियाई विद इन दैम, ठीक हो गया। वन इज़ फ्रॉम द मेल एंड वन इज़ फ्रॉम द फीमेल, ठीक है। तो एक तो प्लाज्मोगेमी प्रोसेस हो रहा है और साइमल्टेनियसली देयर इज़ आल्सो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एज वेल, ठीक है। कि जिसमें क्या होता है कि हर जो हाइफा है दैट कंसिस्ट ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब लेटर ऑन क्या होता है आफ्टर दिस लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ कि अब कैरियोगेमी ने स्टार्ट होना है, ठीक है। तो कैरियोगेमी में हमने क्या पढ़ा था, तो हम ये एक स्पेसिफिक हाइफा की एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइफा के अंदर जो सेल हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस है अब उन्होंने आपस में फ्यूज़ करना है,
ठीक है। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे आपस में तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। ठीक है, zygote that is known as the diploid because it has double the number of chromosome. But what has actually happened here now कि एक सिंगल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा विद द डबल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब लेटर ऑन क्या होगा इसके केस में, ठीक है, कि बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस ये एक जो है दिस विल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, बाकी के सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, ये जो आपके पास अब ये एस्कोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, दीज आर बेसिकली डेवलपिंग इनसाइड द फ्रूट बॉडी जिसको कि हम एस्कोकार्पल कहते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर्स हैं विद इन दिस स्ट्रक्चर, और फिर आउटर आपको पता है कि इसको हम एस्कोकार्पल कहते हैं। ठीक है, द फ्रूट बॉडी इन केस ऑफ द एस्कोमाइसीट्स। फिर ये बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये 4 दैट आर द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर होता है 4 का, तो ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इनटू 8 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो ये 8 जब स्पोर्स कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो नाउ द स्ट्रक्चर, नाउ द स्पोर्स आर रेडी टू डिस्पर्स through wind, air or any other mechanism and ready for germination whenever they reach their favorable condition. So do like our video if you have been able to understand the sexual reproduction in ascomycetes, and share it with other students as well. And in the comment section do mention if you have any relevant question to the topic, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button, as we will be uploading our next lecture on asexual reproduction in ascomycetes and their importance overall. So do click the bell button so you can receive new video notification on regular basis. Thank you very much.